السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہی ون ڈے سیریز کے حوالے سے موسم کا احوال بتا رہے ہیں۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی، سینٹ ایڈورڈ تاج پہنا دیا گیا۔ حلف برداری کے بعد شاہ چارلس کے حلف نامے پر دستخط، بگل بجائے گئے، توپوں کی سلامی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت 100 سے زیادہ ملکوں کے رہنماؤں کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی شاہ چارلس سوئم کو تاج پوشی پر مبارکباد۔ پاکستانی عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ 2006 میں برطانوی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے نقوش آج بھی ذہنوں میں تازہ۔ شاہ چارلس نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تباہی اور اقدامات کا جائزہ لیا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد اور گردوارہ بھی دیکھا۔ ہنزا اور اسکردو کے باسی آج بھی خوشگوار یادوں میں گم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لندن میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ سری لنکا، مالدیپ، برازیل، مالٹا، زیمبیا اور ماریشس کے صدور اور برطانوی وزیر اینڈریو میچل کا وزیر اعظم سے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ چین کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور چینی ہم منصب شینگانگ کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان، چین، افغانستان وزرائے خارجہ اجلاس۔ افغان صورتحال اور درپیش چیلنجز پر غور۔ بلاول بھٹو زرداری، شینگانگ اور امیر خان متقی نے اپنے وفود کی قیادت کی۔ شرکاء کا علاقائی ترقی اور روابط کے فروغ کے لیے افغانستان میں دیرپا امن کی ضرورت پر زور۔ پی ٹی آئی کے لیے ریاستی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہے۔ ایس سی او اجلاس میں پاکستان کی شرکت کو متنازع بنانے کی کوششیں تکلیف دہ ہیں، تاہم یہ حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ ماضی میں بھی عمران خان نے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عمران خان، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب بس۔ ملک میں آر ٹی ایس ٹھیک ہو چکا ہے، سلیکٹ ہو کر دوبارہ آنے کی سہولت ختم اور سہولت کار جا چکے۔ اب صرف عوام کے لیے بجٹ بنے گا، فرح گوگی اور بشرا بیگم کے لیے نہیں۔ ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ اور آئینی مدت پوری ہونے پر ہوگا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ملاقات۔ مالیاتی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کی آزاد کشمیر میں عوامی فلاح کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں۔ مذہب اور سیاست کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयां, बारामूला और राजौरी अजला में 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। बढ़ते जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल के वाकयात पर मकबूजा वादी में खौफ व हिरास। भारतीय रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद नस्ली फसादात, हलाकतों की तादाद 60 हो गई। 8 अजला में सूरत हाल इंतहाई कशीदा, लोग नकल मकानी पर मजबूर। 10,000 से ज्यादा फौजी और पैरामिलिट्री एहलकार सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा बोल दिया, 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों के मुजाहिरे, 4 माह में 108 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सूडान में खाना जंगी जारी, तोपखाने और फिजाइया का इस्तेमाल। सऊदी अरब की अमन के लिए कोशिशें, मुतहारिब ग्रुपों के वफूद मुज़ाकरात के लिए जद्दा पहुंच गए। और कौमी क्रिकेट टीम का अहम एजाज, पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ कल होने वाले 5वें मैच में कामयाबी दरकार। मैच देखिए दोपहर 3:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। चौधरी साहब, गंदम की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। आगे क्या इरादा है, कौन सी फसल उगाएं? मेरी मानो ना बेटा, इस दफ़ा कपास ही उगाओ, क्योंकि हुकूमत इस दफ़ा बहुत अच्छी कीमत दे रही है कपास। 8,500 रुपये इमदादी कीमत फी मन दे रही है, और उसके साथ साथ खाद और बीज पर 1,000 रुपये सब्सिडी भी दे रही है। कीमत भी कम बनेगी तुम्हारी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। हुकूमत पंजाब कपास के काश्तकारों की तरक्की के लिए कोशां। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। कपास के बीजों पर फी एकड़ 1,000 रुपए की सब्सिडी। DAP खाद पर फी बोरी 1,000 रुपए की सब्सिडी। कपास की काश्त पर बैंक से कर्जे की सहूलत। अच्छी पैदावार पर किसानों के लिए करोड़ों रुपए के कैश इनामात। किसानों के लिए बीजों पर सब्सिडी के अलावा खाद, स्प्रे, पानी और दीगर ज़रूरी जरूरियात की फराहमी। कपास उगाओ, भरपूर मुनाफा कमाओ। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे बरतानिया में 7 दहाइयों बाद ताजपोशी की तकरीब की। शाह चार्ल्स सोएम को सेंट एडवर्ड ताज पहना दिया गया। ये रस्म 1066 से चली आ रही है। ताजपोशी की तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 100 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में दुनिया भर से आलमी रहनुमा तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ताजपोशी की शाही तकरीब के लिए शाह चार्ल्स और उनकी अहलिया मलका कमेला डायमंड जुबली कोच में बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर एबे के लिए जुलूस की शक्ल में रवाना हुए। 2012 में मलका एलिजाबेथ दोयम की ताज की 60वीं तकरीब के मौके पर ये बग्गी तैयार की गई। बादशाह की क्यूलरी बग्गी को स्क्वाट कर रही थी। रूट के दोनों जानिब अवाम किंग चार्ल्स और उनकी अहलिया के खैर मकदम के लिए मौजूद थे। करीबन 2 किलोमीटर रूट के दोनों अतराफ बरतानवी, बर्री, बहरी और फजाई शाही अफवाज के 1000 एहलकार तैनात थे। जुलूस ट्रेफाल्गर स्क्वायर, व्हाइट हॉल, पार्लियामेंट स्ट्रीट से होता हुआ ब्राड सेंचुरी की जानब मुड़कर वेस्टमिनिस्टर एबे के मगरबी दरवाजे ग्रेट वेस्ट डोर पर पहुंचा, जहां शाही तकरीब का बाकायदा आगाज कैंटरबरी चर्च के आर्च बिशप ने किया। बिशप से हल्फ उठाने, मुख्तलिफ शाही रवायती रसूमात की अदायगी के बाद हुक्मरानी का शाही औरब, सलीब और फाख्ता वाली असाएं पेश की गईं। इसके बाद बादशाह को सन 1300 में बनने वाली शाही कुर्सी पर बिठाकर 1661 से इस्तेमाल होने वाले तारीखी ताज स्टेट एडवर्ड के जरिए ताजपोशी की गई। इसके बाद मलका कमेला की ताजपोशी की गई। इस मौके पर वली अहद प्रिंस विलियम ने बादशाह को बोसा देकर अपनी वफादारी का इजहार किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
नाज़रीन, शाह चार्ल्स सोइम ने 2006 में बतौर वली अहद पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके नकूश आज भी आवाम के जहनों में ताज़ा हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोइम ने आजहानी मलका एलिजाबेथ दोइम के बड़े बेटे और बरतानवी शाही तख्त के वारिस की हैसियत से आखिरी मर्तबा अक्टूबर 2006 में डचेस ऑफ कार्निवल कमेला पार्कर के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरे में किंग चार्ल्स पाकिस्तान के कई इलाकों में गए और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातों के अलावा अहम तकरीबात में भी शिरकत की। Greatest possible joy to be here with you in Pakistan. It is a marvelous moment to finally reach this remarkable country. Pakistan is developing its industries and also, if I may say so, maintaining its great traditions in a contemporary way. So we are very lucky, I think, in Britain to have so many of the Pakistani diaspora. शाह चार्ल्स सोइम इंसानियत से मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि अपने दौरे पाकिस्तान में खसूसी तौर पर उन्होंने 2005 में आने वाले तबाहकुन जल्जले के मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और जल्जले से मचने वाली तबाही से निमटने के लिए किए जाने वाले इकदामात का भी जायजा लिया। शाह चार्ल्स सोइम अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान शुमाली इलाकों स्कर्दू और हुंजा भी गए। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान ने शुमाली इलाका जात में मुतादिद फलाही कामों के हवाले से मुअज़्ज़िज़ मेहमान को आगाह किया। किंग चार्ल्स सोइम ने स्कर्दू में नंगसुक ऑर्गेनिक विलेज का दौरा किया। उन्होंने शुमाली इलाकों की भरपूर सकाफत में गहरी दिलचस्पी का भी इजहार किया। शाह चार्ल्स सोइम अपनी अहलिया के हमरा लाहौर की तारीखी और मशहूर बादशाही मस्जिद भी गए और एक सिख गुरुद्वारा भी देखा। बादशाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी के मौके पर मालब्रो हाउस लंदन में होने वाला दौलत मुश्तरका का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। बादशाह चार्ल्स सोइम की हैसियत दौलत मुश्तरका के सरबराह की है। दुनिया की 2.5 अरब की आबादी दौलत मुश्तरका के 56 रुकन मुल्कों में बसती है और इसका 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये मस्बत इशारिया है कि पाकिस्तान की भी 60% आबादी नौजवानों की है और हुकूमत इस टैलेंट को उभारने के लिए तमाम मुमकिना मौके और सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात करेंगे स्कर्दू से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गांव नंगसोक की, जो आज भी रोड नेटवर्क के जरिए बाहर की दुनिया से मुंसलिक नहीं है। 2006 में शहजादा चार्ल्स ने यहाँ का दौरा किया। इस गाँव के लोग शाह चार्ल्स के साथ गुजरे वक्त को खुशगवार लम्हा करार देते हैं। कासिम नसीम की रिपोर्ट देखिए। स्कर्दू शहर के साथ वाक़े खरपोची की पहाड़ी के बिल्कुल अक़ब में दरियाए सिंध किनारे एक गांव ऐसा भी है जो अपनी मखसूस जोग्राफियाई हैयत के बाइस साल 2006 तक अहले दुनिया के नज़रों से ओझल रहा, क्योंकि 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत ज़्यादा बुलंदी पर पहाड़ काट कर बनाई गई एक पगडंडी ही इस गाँव को बाहर की दुनिया से जोड़ने का वाहिद ज़रिया है, जहाँ से स्कर्दू शहर लोग पैदल आया जाया करते हैं या फिर दरियाए सिंध पर पुराने ज़माने से इस्तेमाल में मौजूद राफ्ट, जिसे मकामी ज़बान में ज़ख कहते हैं, को आज भी लोग अपनी आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस माजी में इसे ऑर्गेनिक विलेज के तौर पर भी महफूज करने की सही की गई। ये गांव नासोक आलमी सतह पर उस वक्त शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा जब साल 2006 में बरतानिया का उस वक्त का शहजादा और आज के बादशाह चार्ल्स सोइम इस गाँव का दौरा किया। उन्होंने न सिर्फ खित्ते बल्तिस्तान बल्कि इस ऑर्गेनिक विलेज नासोक के कुदरती हुस्न की बड़ी तारीफ की और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुए। विज़िट में मेरे घर का दौरा भी शामिल था। वो मेरे साथ घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और घर के एक एक कमरा उन्होंने देखा और हमारे रहन सहन का वो करीब से देखा और बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने सादा ज़िंदगी को बहुत पसंद किया। हमने उनके लिए बाकायदा एक दही इलाके में जिन लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं उसकी पूरी एक डेमोन्स्ट्रेशन की, जिसमें हल चलाने से लेके गंदम की कटाई से लेके गंदम की थ्रेशिंग करते हुए सारा दिखाया। उस जगह पर जिस पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ तख्त पर किंग चार्ल्स और हिज हाइनेस कई घंटे यहाँ ठहरे रहे। यहाँ इसका गाँव के बारे में ब्रीफिंग दी गई, गाँव वालों ने उनको वेलकम कहा और यहीं पर रिवायती स्टॉल भी खानों के लगे थे, जहाँ पे उन्होंने रिवायती हमारे खानों को वो टेस्ट किया और बहुत पसंद किया। यहाँ बरतानिया के शहजादा को रिवायती तहफ़ भी पेश किए गए। वो अपने इस्तकबाल के लिए आने वाले लोगों से गुल मिल गए। उनके दौरे नासुक
और मकामी लोगों के साथ गुजरे हुए औकात को लोग अपनी जिंदगी के खुशगवार तरीन लम्हात के तौर पर आज भी याद करते हैं। शहजादा चार्ल्स के स्कर्दो के इस ऑर्गेनिक विलेज का दौरा यकीनन दोनों मुल्कों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया साबित हुआ। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। शाह चार्ल्स सोइम की ताजपोशी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म की श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद साले, ज़िम्बिया और मॉरिशस के सदूर और बरतानवी वज़ीर एंड्रयू मिचेल से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म से माल्टा के सदर जॉर्ज विलियम विला ने भी अपनी अहलिया के हमराह मुलाकात की। ब्राज़ील के सदर लुइस लुला डी सिल्वा ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल हुआ। पाकिस्तान और चीन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए एक दूसरे की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा किया है। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके चीनी हममनसब चिन कांग ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए नागुज़ूर है। तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। अपने चीनी हम मनसब के साथ वजारत खारजा में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं और हर आलमी फोरम पर चीन की हमायत जारी रखेंगे। Pakistan and China have always supported each other on issues of core national interest in both bilateral engagements with other countries and in multilateral forums. We greatly appreciate China's steadfast support on all our issues of core national interests, including the principled position on the Jammu and Kashmir dispute. Pakistan and China have celebrated 72 years of friendship. This partnership has grown over the years and enjoys consensus across generations and political divides. Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान समेत खित्ते में खुशहाली के नए बाब खुलेंगे। We also agreed on the importance of the China-Pakistan economic corridor and reiterated our abiding commitment to its high-quality development. As you are aware, that this year we mark the completion of a decade of the China-Pakistan economic corridor. We will continue to work together with all stakeholders for peaceful, stable, prosperous and united Afghanistan. चीन के वज़ीर ख़ारजा चिन गोंग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आलमी और इलाक़ाई अमूर पर एक दूसरे के मौक़िफ़ के हामी हैं। 听取了他对中巴关系的重要意见。 where we had comprehensive and in-depth communication on China-Pakistan relations and international and regional issues of mutual interest. We have cemented high-level strategic mutual trust and reached a host of common understandings on cooperation. चीन के वज़ीर ख़ारजा चिन गोंग ने कहा कि पाकिस्तान पर आलमी इक़्तिसादी दबाव में कमी के लिए चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। 将一如既往支持巴基斯坦主权。 China and Pakistan are all-weather strategic cooperative partners, committed to an even closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. We will, as always, support Pakistan's sovereignty, territorial integrity, and national dignity, firmly support Pakistan in exploring a development path compatible with its national conditions, firmly support the unity, stability, and prosperity of Pakistan, and firmly support Pakistan in playing its dual role in international and regional affairs. मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने आर्मी और इलाकाई फोरम पर एक दूसरे की गैर मशरूत हमायत का अयादा किया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हो रही है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन में
قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں۔ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف لندن میں موجود ہیں۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کے تقریب تاج پوشی میں شرکت کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج لندن میں موجود تھے، اور اب سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے۔ محمد نواز شریف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا استقبال کیا۔ لندن میں اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان مذاکرات میں مختلف شعبوں میں تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تفصیل بتائیں گے رضوان عارف۔ دفتر خارجہ میں پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستانی وفد کی قیادت کی، جبکہ چین کے وفد کی سربراہی وزیر خارجہ جن گونگ نے کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وفود کی سطح پر مذاکرات کے موقع پر کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں۔ چین نے عالمی سطح کے ہر فورم پر ہمیشہ پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور محمد نواز شریف نے چین کے ساتھ اہم منصوبے شروع کیے۔ پاکستان ہر عالمی فورم پر چین کے مفادات کی حمایت جاری رکھے گا۔ China's continued peaceful development and the invaluable benefits it has brought the world and particularly our region. As a lifelong friend of China as someone who's had a three-generational relationship with China, I cherish the legacy of Pakistan-China friendship, and I'm looking forward to working closely with you to strengthen Pakistan-China relations and to take them into the new era. دفتر خارجہ آمد پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چینی ہم منصب کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ چینی وزیر خارجہ جن گونگ نے دفتر خارجہ کے لان میں پودا لگایا۔ اس موقع پر وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ چین کے وزیر خارجہ جن گونگ کا اپنے عہدے کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے، جس میں انہوں نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان مشترکہ مفادات کے منصوبوں کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان، چین اور افغانستان کا سہ افریقی اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے افغان صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری، چن گونگ اور امیر خان متقی نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ شرکاء نے خطے کی ترقی اور روابط کے فروغ کے لیے افغانستان میں دیر پا امن کو ناگزیر قرار دیا۔ افغانستان کے پڑوسیوں اور عالمی برادری کے لیے یہ ضروری ہے کہ دہشت گردی سے جامع انداز میں نمٹنے کے لیے افغان حکومت کی مدد کریں۔ افغان عوام کے مسائل کم کرنے کے لیے منجمد اثاثوں کی بحالی ضروری ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ افغان حکومت خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندیوں سے متعلق عالمی برادری کے خدشات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ریاستی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی شرکت کو متنازع بنانے کی کوششیں تکلیف دہ ہیں، تاہم اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے تب بھی یہی کیا۔ یہ رویہ انتہائی پریشان کن ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ عمران نیازی نے ماضی میں بھی ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، بس ملک میں RTS ٹھیک ہو چکا ہے، سلیکٹ ہو کر دوبارہ آنے کی سہولت ختم اور سہولت کار جا چکے ہیں۔ اپنے بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان بجٹ کی آپ فکر نہ کریں، ملک کو خارجہ محاذ پر تنہا 4 سال تک معیشت کو تباہی، مہنگائی اور بے روزگاری سے دوچار کرنے والی حکومت اب نہیں آئے گی۔ اب صرف عوام کے لیے بجٹ بنے گا، فراح گوگی اور بشرا بیگم کے لیے نہیں۔ اب آٹا، چینی، بجلی، گیس مافیا کا بجٹ نہیں، عوام کا بجٹ بنے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ اور آئینی مدت پوری ہونے پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوگا لیکن فورن ایجنٹ، گھڑی چور اور ٹیریان کا والد سڑکوں پر روئے گا، چیخے گا اور پیٹے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے اقتدار کی خاطر آئین سے کھلواڑ کیا، آئین شکنی کی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نمائندوں کی توہین کی اور اقتدار کی خاطر ہی ملک کے ساتھ سائفر کی گھناؤنی سازش کی۔ فورن فنڈڈ ایجنٹ، توشہ خانہ، فورن فنڈنگ اور ٹیریان کیس سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کس منہ سے IMF کی بات کر رہا ہے، خود معاہدہ کیا اور پھر اسے جان بوجھ کر خود ہی توڑ دیا۔ 4 سال میں 20,000 ارب کا قرض لیا، 190 ملین پاؤنڈز کے بہت بجٹ بنا لیے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ PTI عمران خان کی کرپشن، نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے کریش ہو چکی ہے۔
اور دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مالیاتی امور اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح اور ترقی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر کے حوالے سے کہا کہ محاصل میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان نے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر تجارت سید نوید قمر اور افغان عبوری وزیر تجارت حاجی نور الدین عزیزی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں تجارت، کسٹمز، ٹرانسپورٹ اور خزانے کے حکام نے شرکت کی۔ شرکاء نے کسٹمز تعاون، بارڈر مینجمنٹ، ٹیکسوں میں کمی اور ادویات، گوشت سمیت دیگر اہم مصنوعات کی تجارت پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تجارت کو آسان بنانے اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کسٹم کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ٹی ٹی پی کے ذیلی گروپوں میں اختلافات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان کے علاقے خوست، کنڑ اور دیگر علاقوں میں جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے درمیان لڑائی کے مختلف واقعات میں اب تک 9 دہشت گردوں سمیت اہم کمانڈرز مارے جا چکے ہیں۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں ساجد عمر، ملنگ، کمانڈر ذاکر، طارق عرف ولی، ہاشم عرف ساجد، عثمانی عرف مسلم، رحمان عرف گل بابا اور یوسف شامل ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ذیلی گروپوں نے مرکزی قیادت پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ ٹی ٹی پی قیادت خود غرضانہ رویہ ہے، جس کے بدولت غریب لوگوں کو ذاتی فوائد کے لیے سیکورٹی فورسز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹی ٹی پی قیادت کی خود غرضی کے باعث غریبوں کو مہرہ بنا کر نام نہاد جہاد کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے تاکہ ٹی ٹی پی قیادت ذاتی اور مالی فائدے حاصل کر سکے، لیکن اب ان دہشت گرد عناصر کے لیے افغانستان کی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں بھتے اور تاوان کی رقم کے تنازع پر بلوچ لبریشن فرنٹ کے 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں اہم مطلوب دہشت گرد سرغنہ محمد آسا عرف ملا ابراہیم ہلاک ہو گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے دہشت گرد آسا کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ دہشت گرد محمد آسا 2010 میں بلوچستان لبریشن فرنٹ میں شامل ہوا اور خاران اور شور کے علاقے میں بطور BLF سرغنہ دہشت گرد کارروائیوں میں شامل رہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ نجی چینل کو انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں، مذہب اور سیاست کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی ذاتی جو سیاسی فائدہ کا چیز ہو یا کسی اور نظر سے کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب آپ پاکستان کا کتنا اہم عہدہ سنبھال رہے ہو تو اپنے پاکستان کو جو فائدہ ہے وہ سب سے آگے رکھنا۔ تو اس کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے باوجود کہ بھارت کے شہری ہمارے خلاف احتجاج کرتے رہتے ہیں اور یہاں بھارت میں میرا سر پہ کوئی قیمت رکھا گیا ہے، ان چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آپ کا ملک کے مفاد سوچتے ہیں۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے دکھایا تھا، میں ایک پیسفل نیبر جس کے نتیجے میں ہم دونوں کا پراسپیرٹی ہو، دونوں کے عوام کے فائدے اگر ہم نارملائز کریں پاکستان اور بھارت کے ریلیشنز کے، جس بھارت کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ سب سے دنیا میں سب سے بڑا جمہوریت ہے، ایک سیکولر ممالک ہے، سارے جو اقلیت ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ بھارت میں ہی رہا۔ ناظرین، SCO وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر سمیت اہم امور پر پاکستان کے موقف کو مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا اور بھارتی قیادت کو اپنی ہی دھرتی پر لاجواب کر دیا۔ وزیر خارجہ کے دو ٹوک موقف کو عالمی میڈیا میں نمایاں کوریج دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی بے لاگ اور دو ٹوک گفتگو پر بھارتی قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی اور تمام سفارتی اقدار بھول گئی۔ BBC کو انٹرویو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت کی تنقید کے پیچھے ان کا اپنا عدم تحفظ کا احساس ہے۔ کیا ڈائریکشن دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں، فیوچر میں دونوں دیشوں کے، دونوں ملکوں کے رشتوں کے لے کر؟ موجودہ حالات میں میرا خیال میں بھارت پہ اونس ہے کہ وہ ایسے ایک انوائرمنٹ پروڈیوس کرے جو کہ ٹاکس کے لیے کنڈیوسو ہو۔ اس لیے پاکستان کے پرسپیکٹو سے
5 अगस्त 2019 में जो एक्शंस लिए गए वो काफ़ी संगीन थे और जब तक उनको रिव्यू नहीं किया जाता मीनिंगफुल बायलैटरल इंगेजमेंट मुश्किल होगा। और अब कुछ बात मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फौज की जानिब से जारहियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में बारामूला और राजौरी अजला में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद कर दिया। फौजियों ने बारामूला के इलाके किंसर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की आड़ में एक नौजवान को जबकि दूसरे को राजौरी के इलाके केसरी में जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। राजौरी और पूंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में फौजियों की पुरतशद्दुद फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। भारतीय फौजी गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल जमाती हिफाजत कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कश्मीर से मुतालिक बयान को सराहते हुए इसे हक़ खुद इरादियत के हुसूल की मुनसिफाना जदोजहद में मसरूफ़ कश्मीरी लोगों के लिए तक़वियत और हौसला अफजाई का बायस करार दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के इस गैर मुबहम, वाज़ेह और जुर्रतमंदाना बयान पर उनके मशकूर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम वापस नहीं लेता इसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत के हालिया बयानात इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों का हकीकी वकील और उनकी आवाज़ है। हुर्रियत रहनुमाओं खादिम हुसैन, सैयद सिब्त शबीर क़ौमी और फरीदा बहनजी ने अपने बयानात में कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अपनी तकरीर और भारत में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान कश्मीरियों के जज्बात की हकीकी मानों में तर्जुमानी की। भारत की रियासत मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ली फसादात फूटने के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 60 से तजावुज़ कर गई है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और कमांडर फोर्सेज मकामी लोगों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना रही हैं। रियासती दारुल हुकूमत अम्फाल और चुराचंदपुर के अजला में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है। मुश्तइल अफराद के हाथों भारतीय 204 कमांडो बटालियन का चंखोलन हाउकप नामी कमांडो भी मारा गया है। रियासत मणिपुर में नस्ल कशी का बाजार गर्म है। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले आम शहरियों की मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल कशी के लिए देखते ही गोली मार देने का हुक्म जारी किया है। इस मकसद के लिए इलाके में मजीद फौज भी भेज दी गई है। मणिपुर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता कई रोज़ से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। मोदी सरकार की बेईमाना जुल्म ज़्यादती ने पूरे भारत को मकबूजा वादी बना दिया है। मुश्तइल हुजूम ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और रुकन कानून साज असम्बली विंग्सगेन वॉल्टे पर हमला करके इसकी हालत गैर कर दी है, जिसे तशवीशनाक हालत में मुंतकिल कर दिया गया है। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक करोड़ों रुपए की सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। कई खानदान जान बचाने के लिए मणिपुर से आसाम हिजरत करने पर मजबूर हो गए। और मकबूजा कश्मीर में G20 ममालिक के मुतवक्किल इजलास के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और अठमकाम समेत मुख्तलिफ शहरों में पासबान हुर्रियत के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी धरने और रैली का इनेकाद किया गया। बुजुर्गों और जवानों समेत शहरियों की भारी तादाद ने एहतजाज करते हुए श्रीनगर शाहराह पर मार्च किया। शहरियों ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर G20 के मेंबर सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक से मुतनाज़ इजलास के बाइकआउट का मुतालबा दर्ज था। रैली के शुरा से खिताब के दौरान मुकर्री ने कहा कि G20 ममालिक को मुतनाज़ा कश्मीर में ग्रुप के इजलास के पीछे भारत के मज़मूम फौजी मकासद को समझना चाहिए और एहतजाजन बाइकआउट करना चाहिए। बीजेपी जंगज़दा कश्मीर में इजलास बिठाकर दरअसल अपना घिनौनी जंगी जराइम और खूनी खेल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुकर्रीन का कहना था कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में G20 इजलास के निकाह जैसी सरगर्मियाँ कश्मीरी अवाम पर भारत के वहशियाना मज़ालिब से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकती। भारत श्रीनगर में G20 इजलास के निकाह करके गुमराहकुन तासुर देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ मामूल पर है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमाओं ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास की तैयारियों के सिलसिले में इलाके को मिलिट्री जोन में तब्दील करके मकामी लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद रफीक टार और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सिक्योरिटी के नाम पर भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कत्ल गारतगिरी और गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि आम लोगों को हिरासा किया जा रहा है। JKLF ने मकबूजा इलाके के लोगों से 22 और 23 मई को मुकम्मल हड़ताल करने और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों से एहतजाज करने की अपील की है। हमारे शहदा हमारे हीरो। शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए निजी स्कूल के तलबा ने मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। कौमी हीरोज की पहचान और उनकी खिदमात को नई नस्ल से रूशनास करवाने के लिए मुजफ्फराबाद के निजी स्कूल के तलबा को मुजफ्फराबाद में कायम यादगार शहदा का दौरा करवाया गया। नन्हे तलबा ने शहदा की तस्वीर के साथ साथ
शोहदा को खराज अकीदत पेश करते नारों से मुज़य्यन बैनर्स थाम रखे थे। इस मौके पर बच्चों को तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी कश्मीर और अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और दीगर कौमी हीरोज़ की खिदमात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ये तलबा में उन वतन की मोहब्बत का जज्बा उजागर करने के लिए, फ़ौज की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए हमने ये वॉक का इनेकाद किया है। The purpose of arranging this visit to increase the level of creativity of observing the struggle and efforts of our great soldiers and the national heroes. नन्हे तलबा यादगार शोहदा से मुल्हिका गैलरी में भी गए, जहां शोहदा की तस्वीर के साथ साथ कश्मीर के कुदरती हुस्न जमाल और मुनफरिद तहजीब और सकाफत की अक्कासी करती दिलकश तस्वीरें आवेज़ां की गई थी, जिनमें नन्हे तलबा ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की, मालूमात लेते और तस्वीर बनवाते रहे। We recognize the effort of our army. Thank you army for the everything. अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान आर्मी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए भी पेश पाक आर्मी की जानिब से आज़ाद कश्मीर की वादी रीवा में किसानों के माशी ज़रई मसाइल के हल के लिए सस्ते मयारी बीज और हल के साथ मुफ्त ट्रैक्टर भी फराहम किए जा रहे हैं। बेहतरीन हिकमत अमली और ज़राअत में इजाफे के लिए सेमिनार का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि मुकामी किसानों को ज़रई शऊर से आगाही दिलवाई जा सके। इस वक्त पाक आर्मी के तान से हमने एक सीड ड्रिलिंग मशीन भी लाई हुई है और उससे ये होता है कि एक तो पौधे का फासला जो है वो मुनासिब है और बीज भी जो है ना वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है, वो 1 से 1.5 इंच तक नीचे गहराई में जाता है और उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी होती है। सेवल ट्रैक्टर आते थे ज़मीन की जो है वो आबियादी करने के लिए, ज़मीन को बनाने के लिए। जो वक्त गुजरता गया तो उन्होंने हमारे लोगों की से जो है वो बजाय इसके कि उनको फ़ायदा देते तो अपने क्राइम को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यकीनन आर्मी ने इस पहलू पर गौर किया, उन्होंने हमें ये सहूलत दी है कि आप जो है हम ट्रैक्टर आपको मुहैया करते हैं, अपनी ज़मीनों को जो है आबाद करें आप। जनूबी पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। जनूबी पंजाब में गंदम खरीदारी हदफ का 70%, जबकि मुल्तान डिवीजन में खरीदारी हदफ 75% से जायद हासिल किया जा चुका है। तफसील बताएंगे फरहान मिर्जा। गंदम की बेहतरीन पैदावार के हसूल के बाद महकमा खुराक की गंदम खरीदारी मुहिम जनूबी पंजाब भर में भरपूर अंदाज में जारी है। जनूबी पंजाब से गंदम खरीदारी के लिए 22,59,000 मैट्रिक टन का टारगेट मुकर्रर किया गया, जिसका 70% से जायद टारगेट हासिल कर लिया गया है। मुल्तान डिवीजन में 6,51,000 मैट्रिक टन टारगेट का 75% से जायद हासिल किया जा चुका है, जबकि 4,60,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है। फसल भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी हुई है और इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 90% टारगेट हमने अचीव कर लिया है और इस सेंटर के हवाले से बात करें तो इसमें 82% हमने अभी तक अचीव कर लिया और अभी भी गाड़ियां मतलब आ रही हैं। सैलाब, बारिशों और माशी मुश्किलात के बावजूद किसानों को बरवक्त खाद और मियारी बीज की फराहमी से गंदम की बेहतरीन पैदावार हासिल हुई और आज किसान खरीदारी मराकज पर 3900 रुपए फी मन अपनी गंदम फरोख्त कर रहा है। अपनी गंदम में असल लाए क्या है, सही है, इतने सही रूटीन है, सही सानू मुआवजा मिल रही है, मुआवजा भी अच्छा मिल रहा है, बेहतरीन अखलाक भी अच्छा है, अमला प्यार मोहब्बत वाला है, हमें यहाँ कोई मसला या परेशानी नहीं है। गंदम की खरीद फरोख्त बहुत अच्छी की रही है और बारदाना भी मुझे जितना भी चाहे वो भी मिल सकता है। गंदम की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 224 गाड़ियों को जब्त, जबकि हजारों मन गंदम की बोरियां कब्जे में ली गई हैं। गंदम खरीदारी मरकज पर बारदाने की फराहमी के साथ साथ काश्तकारों को फौरी मुआवजा भी दिया जा रहा है ताकि बेहतरीन फसल के समरात तमाम काश्तकारों तक पहुँच सकें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से रमाबरस तकरीबन 30 लाख मुसलमान फरीज़ा हज अदा करेंगे।
हुकूमत ने हुज्जाज किराम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म कर रखा है। इस मकसद के लिए वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने इस्लामाबाद में हाजी कैंप का दौरा किया। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क रवां साल फरीज़ा हज की अदायगी को आसान और बासहूलत बनाने के लिए वज़ारत हज की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने हाजी कैंप के दौरे में हज इंतजामात का जायजा लिया और हुज्जाज किराम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की अद्वियात के नमूने लिए। उन्होंने अपनी ज़ाती खर्च पर मुख्तलिफ लेबार्ट्रियों से टेस्ट करवाने की हिदायत की। ख़वातीन और मर्द हुज्जाज की अलग अलग तरबियती नशस्त के खिताब में वज़ीर मजहबी अमूर ने कहा कि वज़ारत मजहबी अमूर हुज्जाज किराम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए कोशां है। हुज्जाज किराम को सफर से पहले हज से मुतल्लिक तरबियती नशस्तें लाजिम है। एयरपोर्ट पर तरबियती सर्टिफिकेट न रखने वाले हुज्जाज को सफर करने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि आज़मीन हज पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, उनका हज भरपूर तरीके से होना चाहिए। सारी दुनिया से हाजी आ रहे हैं, उनकी तादाद तकरीबन 2 मिलियन के करीब है और फिर लोकल मिला के शायद ये 3 मिलियन भी क्रॉस कर जाएंगे। तो ये फुल फोर्स का हज हो रहा होगा और इसमें बहुत मसाइल भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी और हर मुश्किल और मसाइल के लिए हर एक को मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना होगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात को कम कर सकें। सेनेटर तलहा महमूद ने मावनीन हुज्जाज से खिताब में कहा कि मावनीन के लिए मेरिट पर पॉलिसी बना दी गई है। उन्होंने हज के बेहतरीन इंतजाम करने पर साबिक वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। रवां बरस पाकिस्तान से 1,80,000 से जायद आज़मीन फरीज़ा हज की सआदत हासिल करेंगे। हुकूमत का यह कहना है कि आज़मीन की खुराक, रिहाइश और ट्रांसपोर्टेशन समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि माजी में हमारे साथ नाइंसाफियाँ की गई, लेकिन फिर भी हमने हालात का सामना बहादुरी से किया। आज इमरान खान अदालतों में सर पर बाल्टी रखकर पेश होता है। ये शख्स किसी माजूर से कम नहीं है, ये वाकई स्पेशल शख्स है। लाहौर में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की तकसीम की तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान ने जो कुछ बोला है आज इसके आगे आ रहा है। शहबाज साहब 2 साल जेल में रहे, पेशियाँ भुगतते हैं, मैं 1.5 साल जेल में रहा हूँ। कोई हमारी सारी लीडरशिप जिला वतनियाँ काटते हैं, सब कुछ करते हैं, तकलीफ़ों से गुजरते हैं, लेकिन कभी ना बाल्टी सर पे ली है, ना कभी हमने व्हील चेयर पे बैठे। अब 4 महीने पहले असम्बली तोड़ के साजिश नहीं तोड़ के है, क्या पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है? 3 आर्टिकल डील करते हैं इलेक्शनों को और 3 में एक जगह है साफ शफाफ इलेक्शन। ये फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करेंगे। दूसरा है कि उस वक्त सारी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, उन 2 आर्टिकल्स को तो भूल जाते हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि इमरान खान के कॉल ऑफ फेल में तज़ाद है। इस शख्स ने इक़्तिदार की हवस में मुआशरती और जमहूरी इक़्तिदार को तबाह कर दिया। उन्होंने ये बात बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और कोई इदारा ये आईनी इख्तियार वापस नहीं ले सकता। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रवां साल मुल्क में 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है। किसानों को उनकी मेहनत के समरात पहुँचाने के लिए कोशां हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं कि मुल्क की तरक्की का सफ़र साजिश के तहत डीरेल किया गया। आज़ाद पार्लियामान आज आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रियासत बचाने के लिए सियासत दांव पर लगा दी। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा कौन से किरदार थे जिन्होंने हंसते बसते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। साबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो किरदार अदा किया सबके सामने है। बद किरदारों ने अपने अमाल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। साकिब निसार पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए, बेटे को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। मैं वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से ये डिमांड करता हूँ पाकिस्तान के लिए, आज पार्लियामान जो अपनी सॉवरेनिटी के लिए खड़ी है, मैं उस पार्लियामान से डिमांड करूँगा कि साकिब निसार के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए, इसके बेटे नजम साकिब को गिरफ्तार किया जाए
اور گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے۔ लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा कि नवाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन साबित ना हो सकी। इमरान खान के दौर में इतनी करप्शन हुई किसी ने पूछा तक नहीं। क्या कोई अदालत, कोई अदारा पूछने वाला है? अभी आप उसको बेले दे देते, पकड़े क्या तहकीकात करें उस चोर की, उस डाकू की, जिसका सर से लेकर पांव तक करप्शन के अंदर आलूद है, जो तोशा खाना की चोरी है, ममनुआ फंडिंग है, टैरियान का केस है, कोरोना फंड में जो खुर्द-बुर्द हुई वो बिलियन ट्री है, जो अद्वियात का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, मैं कौन कौन सी चीज़ गिनाऊं जिसने पाकिस्तान को तबाह नहीं की। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि बद किरदारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे, जिनमें शहर अकायद की UOC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 11 नशिस्तें भी शामिल हैं। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। कराची डिवीजन की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुतवक्को है। इंतखाबी सरगर्मियों में रिवायती जोश खरोश न होने के बावजूद आवाम और उम्मीदवारों को इलेक्शन से उम्मीदें ज़रूर वाबस्ता हैं। हमें जो सहूलत चाहिए सफाई के हवाले से चाहिए हमें, और इसके अलावा गैस का निज़ाम सही होना चाहिए और बिजली का निज़ाम सही होना चाहिए। आवाम को भी यही कहूँगा कि उसी को जिताएं जो इस एरिया के लिए अच्छा हो, इस एरिया में काम कर सके और उसके पास फंड हो, बाद में वो फंड का रोना ना रोए। इंशाल्लाह हमें पीपल्स पार्टी से बहुत तवक्कुआत है और वो काम करेगी इंशाल्लाह। जो भी जमात जीते, जिसको भी फंड जारी हो, उनका मुनसिफाना क्या कहते हैं उस सही तरीके से उसको डिवाइड होना चाहिए और अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। बहुत से मसाइल हैं, बस ये मसलों का हल हो जाए, छोटे मोटे तो ये भी बहुत है, सड़कें बन जाए। सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की मुख्तलिफ कैटेगरीज की 63 नशिस्तों में से कराची डिवीजन की UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तें भी शामिल हैं। जिला वस्ती, कोरंगी और जिला गरबी में 3-3, जबकि जिला केमाड़ी और जुनूबी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की एक मुश्तरका नशिस्त पर पोलिंग होगी। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 449 पोलिंग स्टेशन और 1586 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 292 पोलिंग बूथ को इंतहाई हसास और 157 को हसास करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में 434 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,90,295 है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि अवाम को मिलावट से पाक अशियाए खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल राजा जहांगीर अनवर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को साफ सुथरी अशियाए खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मिलावट माफिया के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाए। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हिदायत की कि तालीमी इदारों के बाहर रेडियो और सड़क किनारे छोटी दुकानों पर बिकने वाली अशिया के मयार को भी यकीनी बनाया जाए। सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर को 15 अगस्त से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर फाल करने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि शहर के सरकारी स्कूलों से 2100 से ज़्यादा होनहार तलबा का इंतखाब किया जाएगा। मुंतखब तलबा को 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा और काबिलियत की बुनियाद पर हर जमात से टॉप 5 तलबा को 10,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। स्कूल में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद 20 से 25 जून तक होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूल की तामीर, मुरम्मत और बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। पंजाब रेंजर्स अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमेशा सरगर्म अमल रही है। गरीब अवाम की ज़रूरत के पेश नज़र इस्लामाबाद में DG रेंजर्स पंजाब की हिदायत पर 21वें विंग पंजाब रेंजर्स के विंग कमांडर की ज़ेर निगरानी नूरपुर गर्ल्स स्कूल बरी इमाम इस्लामाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में नादार और गरीब मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई और बुनियादी टेस्ट भी किए गए। फ्री मेडिकल कैंप के इक़दाम को इलाके के लोगों ने सराहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की तवक्को है। इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। और नाजरीन अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा
درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ شہید بے نظیر آباد میں 42، لاڑکانہ 42، موہنجو داڑو میں بھی 42، پرڈیدن 42، جبکہ ملتان میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں۔ اسلام آباد میں 31، لاہور 36، کراچی 36، پشاور 29، جبکہ کوئٹہ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ ٹیم ICC کی ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 ٹیم بن گئی ہے۔ گرین شرٹس نے یہ اعزاز نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں مسلسل 4 میچز جیت کر حاصل کیا۔ کراچی میں ہونے والے سیریز کے چوتھے میچ میں پاکستان نے 102 رن سے کامیابی حاصل کی، آسٹریلیا اور بھارت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سیریز سے قبل پاکستانی ٹیم رینکنگ میں 5ویں نمبر پر موجود تھی۔ ٹاپ پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے گرین شرٹس کو نیوزی لینڈ کے خلاف 5ویں اور آخری میچ میں بھی کامیابی درکار ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا 5واں اور آخری ون ڈے میچ کراچی میں ہی کھیلا جائے گا۔ میچ دن 3:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ نمبر 1 ٹیم کا کپتان ہونا بڑا اعزاز ہے۔ شاندار کارکردگی پر کھلاڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان نمبر 1 بنا اور اس کا میں اس ٹیم کا کپتان ہوں، اور میرے خیال سے پورے پاکستان کو مبارکباد اور ان کی سپورٹ PCB کو، مینجمنٹ اور اسپیشلی پلیئرز جن کی وجہ سے ہم نمبر 1 بنے۔ ایز اے ٹیم آپ کو کافی اس سے موٹیویشن ملتی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو کنٹینیو رکھیں، آگے جو ایونٹ آ رہا ہے اس میں بھی ایسے ہی پرفارمنسز دیں ہم۔ پاکستان انڈر 19 نے بنگلہ دیش انڈر 19 ٹیم کو پہلے ون ڈے میچ میں 9 وکٹوں سے ہرا کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ چٹوگرام میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنائے۔ محفوظ الرحمان نے سب سے زیادہ 70 رنز کی اننگز کھیلی اور ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کی طرف سے عامر حسن نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان انڈر 19 نے 166 رنز کا ہدف 37.2 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنرز نے 148 رنز کی شراکت قائم کی۔ شاہزیب خان 83 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اذان اویس نے 69 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ سیریز کا دوسرا میچ پیر کو چٹوگرام میں ہی کھیلا جائے گا۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے 3 کوچز اور باکسرز پر 2 سال کی پابندی عائد کر دی ہے۔ سیکریٹری PBF کرنل ریٹائر ناصر تنگ کے مطابق ایگزیکٹو کونسل نے کوچ احمد علی جبکہ باکسرز محمود الحسن اور اجمل پٹھان پر 2 سال کی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایگزیکٹو کونسل نے یہ فیصلہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کیا ہے۔ مٹیاری میں سندھ کا ثقافتی کھیل ملاکھڑا کا انعقاد کیا گیا۔ پہلوانوں کے داؤ پیچ سے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ تفصیل افتخار عادل کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ کا روایتی قدیمی ثقافتی کھیل ملاکھڑا نہ صرف سندھ بلکہ ملک سمیت دنیا بھر میں مختلف ناموں سے بڑے شوق و ذوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اس دوران تماشائی بھی بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ملاکھڑا سندھ کا روایتی کھیل ہے اور اسے دیکھنے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ مل جو ہے سندھ کی بہت قدیمی کھیل ہے، نوجوان جو ہے ان کو صحت ملتی ہے۔ ملاکھڑا سندھ کا روایتی میلہ ہے، یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں ملاکھڑا دیکھنے۔ یہ ملاکھڑا بہت اچھا ہے، ہمیں بہت مزہ آیا ہے۔ مل پہلوان کا کہنا تھا کہ کرکٹ دیگر کھیلوں کی طرح ملاکھڑا کھیل کو بھی متعلقہ حکام فروغ دے۔ ہمارا یہ اسپورٹ کے سندھی گیم ہے، مطلب پہلوانی گیم ہیں، انہی کی طرح ہمارے گیم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے ہمارا نام روشن تھے، پاکستان کا نام روشن تھے۔ پاکستان زندہ آباد۔ متعلقہ حکام کو چاہیے کہ اس روایتی کھیل ملاکھڑا کی طرف توجہ مبذول کرے، اس کو دیگر کھیلوں کی طرح قومی و بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے کی کوشش کرے۔ افتخار عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مٹیاری۔ سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔